हाँ, आ गए सभी। ओके, एवरीवन पुट योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स। मेरा आवाज आ रहा है कंप्लीटली? कोई डिस्टरबेंस होगा तो बोलिए मुझे। ओके, हाँ, हेलो हेलो हेलो। हेलो, यस सर। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ हाँ। यस ओके सर। ओके ओके। नाउ today we are going to start the new point is testing and verifications. जनरली अगर आप इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हो तो प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के बाद हर इंडस्ट्री में बीई या एमई या रिसर्चर स्टूडेंट लिए जाते हैं फॉर टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट। टेस्टिंग इंजीनियर जनरली एक सेपरेट कोर्स है। ये नियर अबाउट 6 या 8 महीने का कोर्स है सेपरेट। इसमें आपको सिखाया जाता है कि भाई व्हाट इज टेस्टिंग एंड हाउ यू कैन कैरी आउट द टेस्टिंग। ओके, so there are ways for testing of hardware, there are ways for testing software, there are ways for testing of your product at customer level also. Okay, so these things are comes under the testing and verifications. ओके, तो आज मैं एक छोटा पॉइंट यहाँ पर ले रहा हूँ। कैसा, अपने करिकुलम में 1 ही घंटे का पॉइंट मैंने इसमें डाला था कि भाई एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट इज द टेस्टिंग। ओके, तो जनरली अक्सर बच्चे जब कंपनी में जाते हैं तो उनको वहां पर बताया जाता है कि भाई एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू डू द टेस्ट। ओके, वैसा आपने यहाँ पर अभी बी का प्रोजेक्ट शायद कर रहे होंगे या आपने थर्ड ईयर लेवल पे मिनी प्रोजेक्ट कर लिया, तो वहां पर भी आपको थोड़ा बहुत टेस्टिंग के आइडिया आ गई। ओके, व्हेन यू हैव अ फाइनल प्रोटोटाइप, that time you can able to do verification of your system whether it is working in proper fashion or not, whether hardware is responding with correct time or software is responding with correct fashions. Okay, so these things will be checked by the system designer, manufacturer, as well as at customer level also. तो मैं आपको थोड़ी बहुत यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ कि भाई टेस्टिंग होता क्या है और यहाँ पर टेस्टिंग के क्या टाइप्स रहते हैं। ओके, तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू हियर द डेफिनेशन ऑफ द टेस्टिंग। Test or verification involves ensuring that functionality is correct. Whatever the function of the prototype, फॉर एग्जाम्पल फंक्शन मैं बता रहा हूं यहाँ पर। फंक्शन बोले तो बहुत सारे बच्चों को ये समझ में आता है कि भाई फंक्शन बोले तो हमारा सी लैंग्वेज का फंक्शन। ओके, लेकिन फंक्शन हम यहाँ पर इस तरह कहते हैं कि वो जो एक्टिविटी कैरी आउट करवानी है ओके हमारे पर्टिकुलर सिस्टम्स के द्वारा, तो वो भी यहाँ पर एक पर्टिकुलर आपका फंक्शन ही होगा। ओके, तो जनरली हम यहाँ टेस्टिंग इन एम्बेडेड सिस्टम कैरी आउट करते हैं with the help of verification and validation of the hardware
and software. Okay, so generally whenever you are talking about the testing, we will check whether the every function will be working in correct fashion or not. Okay, similarly we will assure that the time consumption of the particular function will be proper. Okay, it should have low abstraction level. Okay, similarly, and iterating back to high abstraction level. Now generally whatever iterations that we will provide in terms of embedded, okay, so that's why that iteration is also important. Okay, so that's why here we will go for the testing. Okay, generally, wait, एक मिनट, हाँ चलिए. Now, whenever we talk about the testing, that time here in terms of embedded testing, we will check the functional and non-functional attributes of the software as well as hardware. Okay, we will ensure that the final product is defect free. Okay, यानी आप भी जनरली अगर कोई मोबाइल या टीवी अगर परचेस करते हो मार्केट से, तो एवरीवन विल ट्राई टू चेक the product will have any kind of defect or any mobile will have any problem. Okay, agar problem raha to we will not purchase it. Okay, so that's why, okay, we will check it whether it will be defect free. The main purpose of an embedded system is embedded testing is to verify and validate whether your final product of the embedded hardware and software will fulfill all the requirement of the client or the customer. Okay, otherwise if it will not satisfy all the requirement of the customer or client, then how you can sell your product in the market? No, you cannot go for selling of your product in the market. So that's why here this testing is necessary. Now embedded software testing and, okay, remember, embedded software testing checks and ensure the correct or correction, means whether it will be have good quality or it will be compliance with all the requirement. Okay, it should satisfy all the meet whatever which we have written the code. Similarly, the embedded software testing is an excellent approach to guarantee security in critical applications like medical equipment, railway, aviations, vehicle industries, okay, etc. Okay, so there is a strict and careful testing is crucible to grant software certifications. Okay, so that's why the testing is important at hardware as well as software level. Now here point is, what is testing? It is discipline process to evaluate application behavior, performance and robustness. ओके, यानी आप अगर कभी टेस्टिंग का डेफिनेशन बोलोगे तो टेस्टिंग के डेफिनेशन बोलते समय आपको इन पॉइंट्स के ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि भाई इट इज अ डिसिप्लिन, it is a discipline process to evaluate
application behavior, performance, and robustness. Okay. Now I am highlighting some types of testing in front of you. Okay. Whenever you heard about the testing, that time these types are comes in your mind. Okay. So these types will help you to understand how the testing is carried out. So here near about 7 points are present for testings point of view. First is black box testing. Okay. Then second one is white box testing. Then third is performance testing. Then fourth one is here gorilla testing. Okay. Then sixth one is field trial testing. Then acceptance testing. Then regression testing. Okay. These are the different types of testings that are in front of you. Okay. Now I am giving you idea about each and every point. Okay. So see here, now we will discuss what is this black box testing. Okay. And white box testing. Okay. Now here ब्लैक बॉक्स यानी आपके सामने एक काला बॉक्स, काले कलर का बॉक्स या ब्लैक कलर का बॉक्स या व्हाइट कलर का बॉक्स रखा है, ऐसा नहीं है. इंडस्ट्री में ब्लैक बॉक्स को हार्डवेयर कंसीडर किया जाता है और व्हाइट बॉक्स को सॉफ्टवेयर कंसीडर किया जाता है. ओके. सो दैट्स व्हाई हियर black box as well as white box testing is coming in picture. Okay. Now here when you talk about the black box testing is also called as functional testing. Okay. Black box testing is called as functional testing. Okay. The main ideas are simple. Here I have given you few sets of points like define initial component state, input and expected output for the test, set of component in the required test, then give the define input and observe the output and compare to the expected output. Remember, now I am elaborating. Now here black box testing is a testing method in which internal structure, design, implementation of the system is being tested, is known to the tester. Whatever tester जो इंजीनियर रहता है उसको इंटरनल स्ट्रक्चर, डिजाइन और इम्प्लीमेंट क्या क्या हुआ है ये सारी बातें उसको पता रहती है. ओके. सो दैट्स व्हाई ही कैन डिफाइन इनिशियल कंपोनेंट स्टेट, ओके, इनपुट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट फॉर द टेस्ट अकॉर्डिंग टू. फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोजेक्ट है, आपके पास ओपैम्प है, आपको पता है कि भाई ओपैम्प सैचुरेशन लेवल में कब जाता है, तो वहां पर आप इनपुट कितना अप्लाई करोगे, जितना वहां पर वीसीसी प्रेजेंट रहेगा. बराबर है. वीसीसी के बियॉन्ड अगर इनपुट अगर जाता है तो आउटपुट सैचुरेशन में चला जाएगा. बराबर है ना. तो उसके एम्प्लीफिकेशन फैक्टर भी उसमें कंसीडर किया जाएगा व्हाइल अप्लाइंग द इनपुट. ओके. अगर मैं कहा कि भाई इनपुट अप्लाई करो तो इनपुट यहाँ पर डिपेंडेंट रहेगा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर के ऊपर और यहाँ आपको वह वीसीसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा. तो उतना ही आप वहां पर इनपुट अप्लाई करोगे ना. सो दैट्स व्हाई यू नीड टू डिफाइन द इनिशियल कंपोनेंट स्टेट, input and expected output. You can able to set the component in the required state. Okay. यानी आपको ये पता रहेगा कि भाई मुझे पर्टिकुलर कंपोनेंट किस पर्टिकुलर स्टेट में रिक्वायर्ड रहेगा
किस पर्टिकुलर स्टेट में मुझे कीप आउट करना पड़ेगा। गिव द डिफाइन इनपुट, आपको पता रहेगा कि भाई आप कितना इनपुट देना चाहिए। ओके, कितने इनपुट पे ये रिस्पॉन्ड करेगा। ऐसा नहीं कि भाई सभी इनपुट टेस्ट करते बैठेगा, बिकॉज यू आर मास्टर, you are going for testing up that system. So that's why you will know what will be the defined set of input, and that defined set of input you will try to apply, and in case if the system is not responding, you will say that system is failed or system has damage, or the product is damaged. Okay, in case it will work finely, then you will say yeah, system is okay, you will pass it immediately. Okay, so that's why you will observe the output and compare to the expected output. Getting the meaning of this black box testing? Okay, now here you can find some info for black box testing, that we do not have access to the code does not mean that one test is just as good as other one. We should consider the following information like algorithm understanding, part of the solution that are difficult to implement, and special often seldom occurring cases. ओके, ठीक है, बहुत सारी बातें यहाँ पर कंसीडर की जाएगी। ओके, मैं उसको कोई यहाँ ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ओके, नाउ similarly I am telling you here about the white box testing. Okay, white box testing is the testing where we use the information available from the code of the component to generate the test. याद रखो, generally white box testing is a software testing method, is used for internal structure, design and implementation of the item being tested. Okay, and it is known to the tester. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बोला है कोड कवरेज, पाथ और डिसीजन कवरेज। याद रखो, हम जनरली ये टेस्टिंग कैरी आउट करते हैं सॉफ्टवेयर में। ओके, तो सॉफ्टवेयर में जो सॉफ्टवेयर डेवलपर जो रहते हैं, वह सॉफ्टवेयर डेवलपर यहाँ पर जो प्रोग्राम लिखे हैं, फॉर एग्जांपल आपने लिखा है वेरिएबल एक्स, int x, तो x का लिमिट क्या है? x is a variable, it will hold a integer value, so that's why you should know what amount of value will be held by that variable, and what value will be holding that what will be the value calculated in that variable. Okay, इसमें कोई वैल्यू ऐसी आ रही है कि वो जब बिहाइंड उसके डिफाइन वैल्यू से जा रहा है, या उसमें कोई इतनी मिनिमम वैल्यू आ रही है कि वो कंसिडरेबल नहीं है, तो ये काम सॉफ्टवेयर डिजाइनर का रहेगा। ही विल, और सॉफ्टवेयर टेस्टर का रहेगा, ही विल आइडेंटिफाई कि एक्स नाम का जो वेरिएबल कोड में लिखा है, पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपने डिफाइन किया है, तो एक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, आप लोग बोलते हो कि मुझे प्रोग्रामिंग पढ़ना है, लिखे, ठीक है, प्रोग्रामिंग करोगे, प्रोग्रामिंग में भी यहाँ पर कोड जो लिख रहे हो, तो कोड में हर चीज का यहाँ पर इंपॉर्टेंस रहता है। ऐसा नहीं कि भाई अपने int x लिख दिया है तो x मीन्स वेरिएबल में कैसा भी यूज करूं। एवरी वेरिएबल विल हैव इट्स ओन इम्पोर्टेंस, और उसको वहां पर जांचा जाता है, परखा जाता है, और उसके हिसाब से उसमें कौन से टाइप का वैल्यू कैलकुलेट होने वाला है, कैलकुलेट कब होने वाला है, ये सारी बातें वहां पर डिटरमाइन की जाती है इन टेस्टर्स के द्वारा। सिमिलरली आपने अगर वह पर्टिकुलर वेरिएबल एखादे कंडीशनल लूप में लिखा, कंडीशनल स्टेटमेंट में लिखा है, इफ एल्स या स्विच केस में स्टेटमेंट में लिखा है, तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट भी वहां पर चेकआउट किया जाएगा। ओके, सिमिलरली आपने एखादे लूप में उसे अगर यूटिलाइज किया होगा, लूप आपने लिखा है, फॉर एग्जांपल व्हाइल है, फॉर है, या डू व्हाइल लूप आपने लिखा है, तो वो पर्टिकुलर लूप कितने टाइम इटरेशंस करेगा, ये पर्टिकुलर वैल्यू कैसे वहां पर उसमें वेरी होगी, तो ये सारी वहां पर चीजें पाथ कवरेज में, डिसीजन कवरेज में कैरी आउट की जाएगी। ओके, सो दैट्स व्हाई द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज important. Getting this point? Okay,
नाउ आई एम गोइंग टू कवर द नेक्स्ट पॉइंट ऑल्सो. ओके, ये बहुत सारी मैंने यहाँ पर बातें दी हैं, लेकिन आई होप इट इज नॉट सो मच रिक्वायर्ड, ओके, एट दिस मोमेंट. ओके, just for your understanding's point of view. Then the next point is a performance testing. Now question arises by why we need to do the performance of the system. Remember, we need the performance to check the okay, we need performance testing. Okay, performance testing is a software testing process used for testing the speed, okay, then stability, then scalability, then reliability, then confidence and resource uses of a software application under a particular workload. ओके, यानी आप अगर परफॉर्मेंस किसी का मेजर करना चाहते हो, आपका अगर प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट का अगर परफॉर्मेंस वहां पर मेजर करना है तो ये फाइनल टेस्टिंग रहती है कि भाई यहाँ आपका सिस्टम का स्पीड कितना है. We can determine the speed, okay, we can able to determine the speed with the help of its execution process, with the help of its crystal oscillator. Okay, we can able to find the scalability. Okay, scalability will determine the maximum user load the software application can handle. ओके, स्केलेबिलिटी याद रखो, बहुत सारे बार आप कोई पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर डाटा एंट्री करने जाते हो, डी है या आपने फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लिया तब आपको पता रहता है कि भाई यहाँ पर इस वेबसाइट पे जाने के बाद मुझे एप्लीकेशन करना है इंजीनियरिंग के लिए, तो आप वहां पर देखते ना कि भाई आप लॉग इन ही नहीं हो पाते हो. तो वहां पर लॉग इन नहीं हो पा रहे हो मीन्स मल्टीपल यूजर आर अप्रोचिंग दैट सॉफ्टवेयर. So that's why यहाँ पर scalability means it will determine how many maximum user, okay, are handling your software. Okay, so that's why उसके ऊपर यहाँ पर ये scalability find की जाती है. Then stability आती है. Stability will determine if the application is stable under the varying load. Okay, तो आप यहाँ पर stability यहाँ find out कर सकोगे as per it will determine if the application is running under a stable load. Okay, तो उसके ऊपर आप यहाँ पर stability of the system यहाँ पर ले सकते हो. Similarly confidence आता है. Confidence means are you sure that the user will have a positive experience on go live day. Okay, वहां पर कॉन्फिडेंटली यूजर उसको हैंडल कर पाएगा. ओके, तो यहाँ वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा. सो दैट्स वाई यहाँ वह अपने को जरूरी रहेगा. गॉट इट. नाउ मैंने यहाँ पर स्पीड के बारे में यहाँ बताया था कि भाई स्पीड किस किस के बारे में यहाँ पर ले सकते हो. तो यहाँ पर स्पीड के लिए एग्जांपल दिया है. यूजर एक्सपेक्टेशन रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा, साइकोलॉजी रहेगी, यूजेस रहेगा. ओके, इसके ऊपर भी आप स्पीड ले सकते हो. सिस्टम कंस्ट्रेंट यहाँ पर हार्डवेयर है, नेटवर्क है या सॉफ्टवेयर है, या फिर कॉस्ट है. स्पीड कैन बी एक्सपेंसिव. कॉस्ट के ऊपर भी स्पीड डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि उसके ऊपर आप क्रिस्टल ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी वहां पर फाइंड कर सकते हो कि भाई इतना स्पीड मुझे चाहिए कि उतना स्पीड मुझे पर्टिकुलरली चाहिए. तो वहां पर आप इस तरह उसे यह चीज यहाँ फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, नाउ सिमिलरली स्केलेबिलिटी. ये देखिए हायरार्ची आपके सामने है. हायरार्ची आपको यहाँ पर स्केलेबिलिटी करने के लिए आपको दी है. मैंने आपको डेफिनेशन बताया स्केलेबिलिटी की कैसा है. मैक्सिमम यूजर लोड यहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हो. so that's why how many users are utilizing it. so before it get slow, before it stop working, will it sustain, do I expect today, do I expect before the next upgrade. ये सारी बातें आपके यहाँ पर माइंड में आती हैं. how much data can it hold, database capacity, file server capacity,
बैकअप सर्वर कैपेसिटी, डाटा ग्रोथ रेट, ये सारी बातें वहां पर स्केलेबिलिटी के अंडर यहाँ कंसीडर की जाती है. ओके, गेटिंग माय पॉइंट. ओके, सिमिलरली आपको नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टेबिलिटी. भाई वो स्टेबल है या नहीं. ओके, अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग यूजर्स वर्क में यहाँ पर वो वर्क हो रहा है कि नहीं. एग्जांपल यहाँ पर डायग्राम में बताया है कि भाई यहाँ पर एक कोई इंजीनियर है, वो स्टेबिलिटी चेक कर रहा है कि भाई जो पर्टिकुलर हाउस है वो हाउस पर्टिकुलरली वर्क कर रहा है प्रॉपर, यानी स्टेबल है ऑल एनवायरनमेंट में. सो दैट्स व्हाई व्हाट हैपन इफ देयर आर मोर यूजर देन वी एक्सपेक्टेड. ओके, क्वेश्चन में ही आंसर है. what happen if there are more user than we expected. All the user do the same thing. Okay, a user get disconnected. Okay, there is a denial of service attack. The web server goes down. We get too many orders from the same thing. देखिए बहुत सारी बातें यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं स्टेबिलिटी में. तो स्टेबिलिटी इससे कंसर्न हो सकती है. ओके, मैंने जस्ट आपको ये एग्जांपल बताया है कि भाई यहाँ इस तरह के पॉइंट्स यहाँ कंसीडर हो सकते हैं. देन कॉन्फिडेंस. ये अर्थ के ऊपर आदमी सो गया है, बराबर है, अर्थ के ऊपर आदमी सो गया है, इसका इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई यहाँ मैं सो सकता हूँ भले भी यहाँ कुछ भी हो जाए नीचे. ओके, so if you know what the performance is, you can access risk, you can make informed decision, you can plan for the future, you can sleep the night before go live day. ओके, तो ये आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि भाई मेरा प्रोडक्ट है रन करेगा प्रॉपरली, उसमें कोई डिफेक्ट आएगा नहीं. भले भी कॉलेज से घर जाओ या घर से कॉलेज लाओ, प्रोजेक्ट को बिगड़ेगा नहीं, कुछ वायर भी निकलेगी नहीं. बराबर है, सभी यहाँ पर बातें वर्क कैरी आउट करेगी, कैसा भी उसको हैंडल करो, नो प्रॉब्लम. ओके, सो दैट्स व्हाई ये कॉन्फिडेंस रहता है. और आगे चलते हैं, नया पॉइंट है. आगे पॉइंट आएगा परफॉर्मेंस टेस्टिंग. ओके, नाउ हियर वी आर गोइंग टू टेस्ट. ओके, परफॉर्मेंस. तो परफॉर्मेंस जो है वो वैलिडेशन, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, परफॉर्मेंस इंजीनियर, ये पर्टिकुलर कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट होता है. ये डायग्राम के द्वारा यहाँ पर बताया है. डिटेक्ट, डायग्नोस एंड रिजॉल्व. ओके, जब आप परफॉर्मेंस टेस्ट करते हो तो अगर आपको ऐसा लगा कि भाई कोई डिफेक्ट आया है तो वो डिफेक्ट यहाँ पर ये डिटेक्ट किया जाएगा. डिटेक्ट के बाद उसको डायग्नोसिस किया जाएगा. व्हाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्यों आया भाई ये रिजल्ट, प्रॉब्लम क्यों आया, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी. अगर वो रिजॉल्व हो रहा है तो ठीक है, नॉट रिजॉल्व है तो उसको कैसे यहाँ पर सॉल्व करना, इसके ऊपर फिर से मंथन हो सकता है. ओके, तो ऐसा यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस टेस्टिंग रह सकता है. परफॉर्मेंस वैलिडेशन भी है. परफॉर्मेंस वैलिडेशन इज द प्रोसेस बाय विच सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड विद द इंटेंट ऑफ द determine if the software meets pre-existing performance requirement. This process aims to evaluate the compliance. ओके, तो ये यहाँ पर इस तरह हो सकेगा. ओके, देन नेक्स्ट आता है गोरिल्ला टेस्टिंग. आपने गोरिल्ला तो देखा है, आपको पता है कि भाई गोरिल्ला होता क्या है. मंकी पता है, बराबर है. तो गोरिल्ला या मंकी जो रहता है उसको पता नहीं रहता है कि भाई यहाँ ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट किस लिए यहाँ डिजाइन किया गया है. ओके, तो ऐसे सिचुएशन में आप वहां पर कोई अननोन पर्सन, गोरिल्ला का मीनिंग है कि आपके सामने कोई अननोन पर्सन आ गया और वो अननोन पर्सन को हम यहाँ पर कह देते हैं कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट यूज करो. अगर उसने प्रोडक्ट रोबोस्टली उसको हैंडल कर लिया, इफिशिएंटली हैंडल कर लिया, तो आपको उसके ऊपर गर्व होना चाहिए कि भाई मेरा प्रोजेक्ट, मेरा पर्टिकुलर प्रोडक्ट कोई भी यूजर इजीली हैंडल कर पा रहा है, उसको डिफिकल्टी ना आए, उसको ट्रबल ना आए, उसको हार्म्स ना आए, उसको वहां पर इजियर सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट लगे, तो आप वहां पर कह सकते हो माय प्रोडक्ट इज पास थ्रू गोरिल्ला टेस्टिंग. रिमेंबर, आई एम टेलिंग यू द डेफिनेशन.
Gorilla testing is a software testing technique wherein a model of the program is repeatedly tested to ensure that it is working correctly and there is no any bug in that model. Getting my point? I am just repeating the definition. Gorilla testing is a software testing technique wherein a model of the program is repeatedly tested to ensure that it is working correctly and there is no any bug in that model. Okay, so that's why here Gorilla testing is carried out. Now here, because of the Gorilla testing, you can find many things in your product. Because of the Gorilla testing, you will know whether is there any kind of input problem, is there any kind of handling problem, is there any kind of operating problem, is there any kind of output resources utilizations problem. Okay, all problems are get solved with the help of Gorilla testing. So that's why this testing is also called as random tester. It is used for robustness. ओके, यानी आपका प्रोडक्ट कितना रोबस्ट है ये टेस्ट करने के लिए जनरली यहाँ आपका प्रोडक्ट यहाँ इस टेस्टिंग के द्वारा पास किया जाता है. ओके, देन इट अप्लाइज रैंडम इनपुट. ओके, it applies random input. If the system withstand or tolerate such random input, then you can conclude that your product is very good and robust. Okay, so that's why this testing is carried out by the manufacturer. ओके, यानी जब कस्टमर के हाथ में जब प्रोडक्ट आता है तो वो कस्टमर कितना भी उसको कैसे भी हैंडल करे, ऑटो में लेके जाए या ट्रैक्टर में लेके जाए, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं आएगा. ओके, इसलिए वहां पर इस तरह की टेस्टिंग मैन्युफैक्चरर लेवल पे जब प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तो उसके बिफोर ये टेस्ट किया जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट आता है भाई फील्ड टेस्ट. अभी फील्ड टेस्ट होता क्या है? जनरली फील्ड टेस्ट यहाँ पर आपको यूजर लेवल पे किया जाता है. ओके, दिस टेस्टिंग इज डन एट यूजर प्लेस. ओके, मीन्स यहाँ आपने प्रोडक्ट पर्टिकुलरली डिजाइन कर लिया, मार्केट में लॉन्च कर दिया और मार्केट में लॉन्च करने के बाद कोई कस्टमर ने उसको परचेस भी कर लिया. परचेस करके वो घर पे लेके गया और घर पे लेके जाने के बाद वहां पर उसने ऑन किया तो उस आपका प्रोडक्ट वहां पर रन होना चाहिए. अगर रन नहीं होता है तो आपको वहां पर उसके घर पे ऊपर सर्विस देना पड़ेगा. तो वहां फील्ड टेस्टिंग पहले कैरी आउट किया जाता है. तो जनरली कंपनीज में जब फील्ड टेस्टिंग कैरी आउट करते हैं तो वहां पर फ्रीली उनके एम्प्लॉइज को या कोई अदर जो कस्टमर है उनको फ्री प्रोडक्ट जनरली दिया जाता है. कुछ दिनों के लिए आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करो और हमें बताओ कि भाई ये प्रोडक्ट वर्क कैसे हो रहा है. अगर वो प्रॉपरली वर्क हो रहा है तो आप मुझे फीडबैक दो और उसके अकॉर्डिंग अगर मेरा प्रोडक्ट अगर प्रॉपरली वर्क हो रहा है तो वह प्रोडक्ट मैं मार्केट में लॉन्च करूंगा. एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सारे बार अपने न्यूज़पेपर के साथ कभी कभी शैम्पू का पाउच भी आता है, बराबर है. कभी कभी शैम्पू का पाउच या कोई अदर प्रोडक्ट का पाउच आता है तो आपको वो एज ए सैंपल प्रोडक्ट रहता है. हेलो, आते हैं ना? हेलो, हाँ, तो सैंपल प्रोडक्ट आता है तो ऐसे सिचुएशन में आप उसे पर्टिकुलरली यूज करते हो, बराबर है. और यूज करने के बाद वहां पर शायद आप कभी फॉलोअप देते हो या कभी फॉलोअप नहीं भी देते हो, बराबर है. सो दैट्स व्हाई ये टेक्नोलॉजी वहां पर एडॉप्ट होती है कि भाई यहाँ आपका पर्टिकुलरली प्रोडक्ट
कस्टमर के पास फ्रीली अवेलेबल हो और वहां वो यूज करे और उसके द्वारा आपको वह फीडबैक फॉलो अप दे. ओके, सो इट इज यूज फॉर एनवायरमेंट मैचिंग, यानी वो एनवायरमेंट से मैच कराने के लिए भी होता है कि भाई आपका प्रोडक्ट पर्टिकुलर किस एनवायरमेंट में वर्क कैरी आउट कर रहा है या नहीं, इसलिए भी वहां पर फील्ड ट्रायल टेस्टिंग होती है. ओके, देन नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. अभी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता क्या है? ओके, आपने प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर लिया है ना, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो गया, बराबर है. आपने प्रोडक्ट घर पे लेकर आए, यानी पर्टिकुलरली वो प्रोडक्ट टेस्ट हो गया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने उसको ग्रीन सिग्नल बता दिया, आई एम रेडी, आई एम सेटिस्फाइड विथ योर प्रोडक्ट. सो दैट्स व्हाई acceptance testing is a formal testing conducted to determine whether a system satisfy its acceptance. There are two categories of acceptance testing: user acceptance testing and business acceptance testing. यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में कस्टमर के पास वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट रहेगा. इट इज कंडक्टेड बाय द कस्टमर टू इंश्योर दैट द सिस्टम सेटिस्फाई द कॉन्ट्रेक्चुअल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बिफोर बीइंग साइन ऑफ एज मीटिंग यूजर एंड्स. यानी आप मोबाइल परचेस करके लाए हो, वो पर्टिकुलरली मोबाइल आपको 6 महीना या 1 साल का पर्टिकुलर गारंटी रहता है कि भाई अगर आपके घर पे या आपके लेवल पे कहीं उसको कहीं प्रॉब्लम आ गया, देन आई विल गिव यू आइदर रिप्लेसमेंट और आइदर गिव अ करेक्शन इन द प्रोडक्ट. ओके, तो जो करेक्शन है, फॉर एग्जांपल कीपैड इज नॉट वर्किंग, डिस्प्ले इज नॉट वर्किंग, तो ऐसे सिचुएशन में आपको वो करेक्टिव मेजर्स मैन्युफैक्चरर करके देता है. ओके, तो ऐसे करेक्टिव मेजर्स वहां पर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में साइन किए जाते हैं. ओके, बिजनेस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में भी इसी तरह एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की जाती है. तो इट इज अंडरटेकन विद इन द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सप्लायर टू इंश्योर दैट द सिस्टम विल इवेंचुअली पास द यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. ओके, तो इस तरह का एक्सेप्टेंस टेस्टिंग वहां पर कैरी आउट किया जाता है. उसमें कोई ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं: कंफर्म दैट सिस्टम मीट्स द एग्रीड अपॉन क्राइटेरिया, आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व द डिस्क्रिपेंसी इफ देयर आर एनी, एंड डिटरमाइन द रेडीनेस. ओके, तो इस तरह के पर्टिकुलरली वहां ये कैरी आउट किए जाते हैं इस तरह के टेस्टिंग. आई होप एवरीवन हैव गिवन द अटेंडेंस. आई होप एवरीवन हैव गिवन द अटेंडेंस. जिन्होंने अटेंडेंस नहीं दिया है उन्होंने अटेंडेंस दे दो. टाइम खत्म होने पे आया है, 40 सेकंड 30 सेकंड बाकी है. ओके, विनय बड़गुजर राहिला होता का? ओके, ठीक है, फिर मेरे ख्याल से इतना इनफ है आज के लिए. कल देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, चलेगा? थैंक यू वेरी मच. ओके.